So in this chapter, we will discuss the different waveguide junction. It is also called as multiple junction. Now, what is this? What is the junction means? Junction means something which is used to join two or more lines or components together is called as a junction. Junction मतलब वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल जो लाइंस है वो और या वेज है वो क्या होते हैं, एक मीट होते हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो जंक्शन है या वेवगाइड जंक्शन, इस वेवगाइड जंक्शन में हम जो डिफरेंट वेवगाइड्स रहते हैं उस वेवगाइड को ज्वाइन करने के लिए हम जंक्शन का यूज करते हैं. तो इस वेवगाइड जंक्शन के यहाँ पे हम दो बेसिक टाइप्स देखने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे जो है इन अ वेवगाइड सिस्टम at a certain position it becomes necessary to split all part of micro energy into particular direction. अब हमें क्या करना पड़ता है, in most of the time we need to divert or to split or to combine the electromagnetic energy, means micro energy. We may need to split the micro energy in two parts, or we may need to combine the micro energy which is coming from the two part. तो हमें माइक्रो एनर्जी स्प्लिट या कंबाइन करने के लिए जंक्शन यूज करना पड़ता है. फॉर दैट माइक्रो जंक्शंस आर यूज्ड एंड आल्सो यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर सिग्नल्स. ओके, कंबाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है. माइक्रो जंक्शन इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर माइक्रोवेव कंपोनेंट्स. सो माइक्रो जंक्शन क्या रहता है, इट इज नथिंग बट इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर माइक्रोवेव कंपोनेंट्स. कॉमनली यूज्ड जंक्शंस आर जंक्शन दैट इज टी आर एज फॉलोज. सो उसके types say E plane T, then H plane T, then hybrid ring, then directional coupler, circulator, etc. Okay, so basically उसके दो टाइप्स रहते हैं, E plane T and H plane T. Okay, so T junctions have three independent ports. तो अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे at microwave frequencies traveling waves are associated with powers and microwave junctions can be defined by S parameter or scattering parameter. Scattering parameters are the elements of scattering matrix. Scattering matrix is the square matrix which gives all the combinations of power relationship between the various input and output ports of a microwave junction. अब माइक्रोवेव जो सिग्नल है उस माइक्रोवेव सिग्नल को हमें एनालिसिस करना है उसका, तो हम उसके लिए एस पैरामीटर की मैट्रिक्स यूज करेंगे. अब मैट्रिक्स तो आपको मालूम है, तो इस मैट्रिक्स में हमें जो डिफरेंट पावर्स की स्कैटरिंग होती है और जो डिफरेंट जंक्शन के आउटपुट में जो पावर रहती है उस पावर का हमें उस पावर की वैल्यू हमें उस आउटपुट में मिलेगी बाय यूजिंग द स्कैटरिंग मैट्रिक्स. तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं ये हम अभी देखेंगे. सो फर्स्ट प्लेन देखेंगे हम ई प्लेन टी. अब देखो ई प्लेन टी, a rectangular slot is cut along the broader dimension of a long waveguide and a side arm is attached as shown in figure. अब ये फिगर देखो, in this figure there are two ports actually, three ports actually, port 1, port 2 and port 3. Okay, so port 1 and port 2 and port 3, all these ports are means we can insert the energy into that port or we can get the energy output. It means it is a hollow. This rectangular metallic pipe is a hollow, means we can insert the energy, we can propagate the energy into it. We already know what is the microwave waveguide. So this is the microwave waveguide. So here this port 1 and port 2 are the side arm and this port 3 is called as E arm. E arm means this E is name is given with respect to this E plane T. तो ये बात ध्यान रखो, यहाँ पे तीन पोर्ट है, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3. So if we insert the energy into the port 1, then part of the energy is come out of port 2 and part of the energy is come out of port 3. And if we insert the energy from port 2, then part of that energy come out from port 1 and part of the energy is come out of port 3. Likewise, if we insert the energy, micro signal in port 3, then
some energy will come out of port 1 and some energy will come out of port 2. And if we insert the energy in port 2 and in port 1, then the energy will be combined and will be come out of port 3. ओके, तो ये बात आपको, ये एकदम सिंपल जो हमारा लॉजिक है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर द कोलिनियर आर्म्स एंड पोर्ट 3 इज ई आर्म। उसको साइड आर्म भी बोलते हैं या कोलिनियर आर्म भी बोलते हैं। ओके, सो व्हेन इनपुट इज अप्लाइड टू पोर्ट 3, the two output at port 1 and port 2 have the phase shift of 180 degree as shown in figure। अब उसकी प्रॉपर्टी हमें स्टडी करना है ई प्लेन टी की। तो उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेन इनपुट इज अप्लाइड टू पोर्ट 3, अगर पोर्ट 3 को हमने इनपुट अप्लाई किया, मतलब हमने माइक्रो एनर्जी पोर्ट 3 में इंसर्ट किया, तो द टू आउटपुट एट पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 विल हैव फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री एज शोन इन फिगर बिलो। अब देखो, अगर हमने उसमें अगर माइक्रो एनर्जी इंसर्ट की, तो when we insert the micro energy in port 3, then half of the energy will come out of port 1 and half of the energy will come out of port 2। पर जो पोर्ट 1 से आने वाली एनर्जी है और पोर्ट 2 से आने वाली एनर्जी है, जो सिग्नल है, उन सिग्नल में 180 डिग्री फेज शिफ्ट रहेगा। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ई प्लेन टी। अब देखो, यहाँ पे इस फिगर से हम उस पैरामीटर जो हमने अभी स्टडी किया, उसका जो प्रॉपर्टी स्टडी किया, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पोर्ट 3 में सपोज हमने माइक्रो एनर्जी इंसर्ट की, तो सपोज दिस माइक्रो एनर्जी हैज पोलरिटी लाइक दिस। ओके, तो अगर ऐसी पोलरिटी है तो उसमें एक्चुअली दोनों भी पोलरिटी रहेंगी। तो ऐसी पोलरिटी है तो पोर्ट 1 कुछ उस एनर्जी का कुछ पार्ट पोर्ट 1 में पोर्ट 1 से आउटपुट मिलेगा और कुछ पार्ट पोर्ट 2 से आउटपुट मिलेगा। तो पोर्ट 1 में जो एनर्जी मिलेगी उसकी पोलरिटी ऐसी रहेगी, और पोर्ट 2 में जो एनर्जी मिलेगी उसकी पोलरिटी उससे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज शिफ्ट रहेंगी। ओके, सो द पावर कम आउट ऑफ पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर एट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। So this is important property of E plane T. So since the electric field lines charges their direction when they come out of port 1 and 2, it is called as E plane T. It is a voltage or series junction symmetrical about the central arm. ये central arm के accordingly कैसा रहता है, symmetrical रहता है। And hence any signal that is to be split or any two signal that is to be combined will be fed from the E arm. Okay, जो हमें स्प्लिट करना है या कंबाइन करना है तो हम उसे ई आर्म में इनपुट देंगे। ई आर्म में इनपुट दिया तो 1 और 2 आर्म से वो स्प्लिट होगा, और अगर 1 और 2 आर्म को हमने अगर इनपुट दिया तो ई आर्म में वो कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, जनरली द पावर आउट ऑफ पोर्ट 3 इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस पावर एंटर्स फ्रॉम पोर्ट 1 एंड 2। अब देखो, हमने सेम पोलरिटी का सिग्नल अगर पोर्ट 1 और 2 में इनपुट दिया तो आउटपुट में हमें दोनों का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि वो दोनों कैसे रहते हैं, एक दूसरे को 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। और अगर हमको कंबाइन करना रहा तो हम दोनों पोर्ट में अपोजिट पोलरिटी का सिग्नल अगर हमने इंसर्ट किया तो पोर्ट 3 में हमें कंबाइंड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, when power entering the main arm port 1 and port 2 are in phase opposition, then maximum energy comes out of port 3, जो मैंने अभी आपको बताया। Since it is a 3-port junction, scattering matrix parameters can be derived। ये 3-port junction है इसलिए हम scattering matrix derive कर सकते हैं। And input at port 3 equally divides between 1 and 2, but introduces a phase shift of 180 degree between the two outputs. So E phase T also act as a 3 dB splitter। 3 dB splitter भी उसको बोलते हैं। ठीक है, equal input at port 1 and port 2 results in no output at port 3। अगर हमने इक्वल इनपुट्स एट पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 अगर दिया तो पोर्ट 3 में हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, जैसे कि वो दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में रहते हैं एक दूसरे के। तो अगर हमने सेम पोलरिटी का सिग्नल, सेम मैग्नीट्यूड का और सेम पोलरिटी का सिग्नल पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को अगर इनपुट दिया तो पोर्ट 3 में मतलब ई आर्म में हमको कुछ भी पावर आउटपुट को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस वो 0 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हम स्कैटरिंग मैट्रिक्स देखेंगे। हम स्कैटरिंग मैट्रिक्स विल स्टार्ट। Okay, so we'll see S parameter
So first, दिस इज a 3 by 3 मैट्रिक्स सिंस द पोर्ट्स आर 3. अब यहाँ पे 3 पोर्ट है, 3 पोर्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 by 3 मैट्रिक्स का यूज करेंगे. तो अब ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स है. स्कैटरिंग का मतलब होता है स्कैटर होना. स्कैटर मतलब, आपको स्कैटरिंग का मतलब मालूम है? जब हमको एक कोई अगर रे इंसर्ट करते हैं किसी टूटे हुए कांच में, अगर जो हमारा ग्लास रहता है उस पर अगर कोई रे इंसर्ट किया तो स्कैटर होता है. ओके, तो दैट इज व्हाट इज स्कैटरिंग. तो यहाँ पे पावर स्कैटर हो रही है इसलिए हम उसको स्कैटरिंग मैट्रिक्स बोलेंगे. तो यहाँ पे देखो 3 by 3 मैट्रिक्स है. S11, S12, S13, S21, S22, S23, देन S31, S31, S32, S33. अब ये 1 क्या है? ये कोएफिशिएंट रहते हैं उसके. ओके, ये है कॉलम और ये है रोज. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? S1, ये कॉलम 1 और रो 1. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रो 1 कॉलम 2 और ये रो 1 कॉलम 3. ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 2. ये रो 2 सेकंड रो कॉलम फर्स्ट. ये सेकंड रो सेकंड कॉलम. ये सेकंड रो थर्ड कॉलम. ऐसा रहता है. ओके, सो यहाँ पे अब ये मैट्रिक्स आपके समझ में आ गया. द स्कैटरिंग कोएफिशिएंट. अब जो स्कैटरिंग कोएफिशिएंट है, देखो स्कैटरिंग कोएफिशिएंट में S23 इज इक्वल टू माइनस S13. जैसे कि हमने अभी प्रॉपर्टी देखी उसकी, उस प्रॉपर्टी के विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉपर्टी S23 इज इक्वल टू माइनस S31. मतलब क्या? S23 में अगर ये 23 का मतलब क्या होता है? 2 में पोर्ट 2 में पावर इनपुट दिया और पोर्ट 3 से पावर आउटपुट आ गया, उसका ऐसा मीनिंग होता है. ठीक है, S23 का मतलब क्या? कि पावर इज प्रोवाइडेड एज इनपुट टू पोर्ट 2 एंड टेकन एज एन आउटपुट फ्रॉम पोर्ट 3 इज इक्वल टू S1 माइनस S13. सो S13 का मतलब क्या? S1 में पावर इनपुट दिया, पोर्ट 1 में पावर इनपुट दिया और पोर्ट 3 से पावर आउटपुट लिया. तो यहाँ पे माइनस साइन है. माइनस साइन का मतलब होता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट. ओके, अब देखो जैसा कि हमने देखा पहले ही, अब ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है और ये पोर्ट 3 है. अब पोर्ट 2 3 मतलब व्हेन वी प्रोवाइड पावर इनपुट टू पोर्ट 2 एंड पावर. अब ये पोर्ट 1 सपोज हमने अभी क्लोज कर दिया और पोर्ट 2 को अगर पावर दिया तो पोर्ट 3 से हमें आउटपुट मिलेगा. ठीक है, बस सेम वे अगर हमने पोर्ट 1 को इनपुट दिया और पोर्ट 2 अगर क्लोज किया तो पोर्ट 1 को इनपुट देने के बाद पोर्ट 3 में जो हमें आउटपुट मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा? उसकी पोलरिटी अपोजिट रहेंगी. पावर के मैग्नीट्यूड सेम मिलेंगी बट उसकी पोलरिटी अपोजिट रहेंगी. इसीलिए पोलरिटी अपोजिट रहेंगी, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है. ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी स्टडी किया क्योंकि अगर हमने पोर्ट 3 में अगर पावर इनपुट दिया तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 से जो पावर आउटपुट आएंगी वो उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर उनकी पोलरिटी कैसी रहेंगी? अपोजिट रहेंगी. वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट में रहेंगे एक दूसरे के. ये ई प्लेन टी की प्रॉपर्टी है. तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार हमने क्या किया? ये इक्वेशन लिखा है यहाँ पे. S23 इज इक्वल टू माइनस S13. मतलब 2 पोर्ट में इनपुट देने के बाद 3 पोर्ट में जो आउटपुट मिलता है सेम आउटपुट वेन पोर्ट 1 को अगर हमने इनपुट दिया और पोर्ट 3 को जो आउटपुट मिलेगा सेम मिलेगा और उसकी पोलरिटी क्या रहेंगी? चेंज रहेंगी. दैट इज उसको बोलते हैं हम 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. सिंस द आउटपुट एट पोर्ट 1 एंड 2 आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री विद द इनपुट एट पोर्ट 3, इसीलिए हमने ये ऐसा लिखा. नाउ if port 3 is perfectly matched to the junction, अगर पोर्ट 3 जंक्शन को परफेक्टली मैच हो गया तो S33 इज इक्वल टू 0. मतलब S3 में इनपुट दिया और 3 में आउटपुट आया. अगर सपोज इसका मतलब क्या होता है? 3 S33 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? 3 को इनपुट दिया और 3 से आउटपुट मिला. तो पोर्ट 3 में अगर इनपुट दिया तो पोर्ट 3 में आउटपुट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक्चुअली जो हमारा आइडियल केस रहता है उस आइडियल केस में हमने जहाँ से इनपुट दिया वहाँ पावर बैक नहीं आनी चाहिए. हमने जहाँ इनपुट दिया वहाँ पे पावर बैक नहीं आनी चाहिए. मतलब अगर हमने 3 को इनपुट दिया तो 3 को आउटपुट नहीं आना चाहिए, तो वो 0 चाहिए. और वो कभी होता है जब ये जो बाकी के पोर्ट अगर जंक्शन को परफेक्टली मैच हो गए तो ये ऐसा नहीं होगा. मतलब अगर हमने 3 को पावर इनपुट दिया तो
आधी पावर पोर्ट 2 से जाएंगी और आधी पावर पोर्ट 1 से जाएंगी बाहर, मतलब या जो जो कुछ इक्विपमेंट हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है उस इक्विपमेंट में जाएंगी, और नो पावर विल कम आउट ऑफ पोर्ट 3। सो S33 कितना आएगा यहाँ पे 0। मतलब when power is provided to the port 3 at the input, then what will be the power at the output of port 3? It is equal to 0। ठीक है। फ्रॉम समरी, फ्रॉम सिमेट्री प्रॉपर्टी Sij इज इक्वल टू Sji। अब ये सिमेट्रिक है, हमने ऐसा बोला कि दिस इज द सिमेट्रिक। ओके, ये क्या है? सिमेट्रिक है, ऐसा हमने बोला। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या बोलती है? S12 इज इक्वल टू S21, S13 इज इक्वल टू S31, S23 इज इक्वल टू S32। मतलब 1 को इनपुट दिया तो 2 को जितना आउटपुट मिलेगा उतना ही, अगर 2 को इनपुट दिया तो 1 से आउटपुट मिलेगा, बराबर है। अगर 1 को इनपुट दिया तो 2 से जितना आउटपुट मिलेगा, 2 को जितना इनपुट दिया उतना 1 से आउटपुट मिलेगा। मतलब S12 इज इक्वल टू S21। ओके, उसके बाद S13 इज इक्वल टू S31, S13 इज इक्वल टू S31, S23 इज इक्वल टू S32। तो ऐसा हम सिमेट्री प्रॉपर्टी का यूज करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमने लिखा। फ्रॉम अबव प्रॉपर्टीज, अब हम क्या करेंगे, जो लोवेस्ट कोएफिशिएंट है उसको हाईएस्ट कोएफिशिएंट से रिप्लेस करेंगे। अब S11, S12, S13। अब यहाँ पे क्या है S12, अभी S21 जो है यहाँ पे क्या था एक्चुअली S21 था, और S21 को हम S12 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि S21 का मतलब क्या होता है S12। सो हियर वी विल रिप्लेस S21 बाय S12, मतलब हाईएस्ट कोएफिशिएंट को हम लोएस्ट कोएफिशिएंट से रिप्लेस करेंगे। ओके, मतलब हम रिडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे क्या S22 ऐसा रखेंगे, फिर S31, यहाँ पे क्या था S23 था, 23। ठीक है, तो S23 मतलब S23, यहाँ पे क्या था S23। ओके, सो S23 मतलब क्या, माइनस S13। यहाँ पे देखो S23 मतलब क्या, माइनस S13। सो यहाँ पे क्या डालेंगे हम, S23 की जगह माइनस S13। अब यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, माइनस S13। सो यहाँ पे फिर S31 था, तो S31 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे S31 था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या था S31। तो S31 की जगह पे क्या हम क्या लिख सकते हैं, S13। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, S13। फिर यहाँ पे क्या था S32, और 32 का मतलब क्या 23, और 23 का मतलब क्या माइनस S13। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस S13। ठीक है, तो उसका यहाँ पे साइन नहीं दिया है, पर आपने यहाँ पे साइन भी लेने का है। तो अब हम यूनिटरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, S और S का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। तो S क्या है, S11, S12, S13, S12, 22, 13, मतलब ये मैट्रिक्स। ओके, और यहाँ पे S33 क्या लिखा हमने, 0, क्योंकि S33 यहाँ पे 0 आया, तो इसलिए उसको हम 0 लिखेंगे। सो इस मैट्रिक्स में जाइए फिर से, S11, अब उसका हमने कॉन्जुगेट लिया, सेम मैट्रिक्स है ये, और ये मैट्रिक्स सेम है, सिर्फ ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये उसका कॉन्जुगेट है। ओके, सो इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इक्वेशन जो है मैथमेटिक्स का, ये हमने यहाँ पे दिया। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा R1 रहता है। हम कभी भी क्या करते हैं, मैट्रिक्स 1 के रो से मैट्रिक्स 2 के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे R1 C1 ऑपरेशन करेंगे हम। R1 मतलब ये, और C1 मतलब ये। ओके, सो R1 C1, तो R1 और C1 का अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा, S11 इंटू S1 S11 स्क्वायर, S12 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 स्क्वायर, S13 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 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। दूसरा R2 C2, मतलब ये R2 है और ये C2 है, तो क्या आएगा S12 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 स्क्वायर, S22 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 स्क्वायर, S13 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 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि ये क्या है R2 और C2 है, तो R2 C2 का ये कोएफिशिएंट कौन सा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट जाएंगे हम, अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट जो है R3 C3। अब हम R3 C3 जाएंगे, देखेंगे। तो R3 C3 में क्या आएगा, S13
स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर, देखो R3C3, R3, ये R3 और ये C3, S13 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 स्क्वायर प्लस S13 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 स्क्वायर, तो कितना आएगा ये यहाँ पे, और उसका कोएफिशिएंट भी कितना आएगा 1। ओके, फिर हम और एक मल्टीप्लिकेशन लेंगे। वैसे यहाँ पे कितने मल्टीप्लिकेशन होते हैं, 9 होते हैं। तो ये जो है R3C1 भी करेंगे हम, R3C1, तो कितना आएगा R3C1, ओके, R3C1 कितना आएगा, ये है R3 और ये है C1, तो S13, देखो R3C1 कितना आएगा, S13 S11 और S13 S12 और 0 इंटू दिस 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। ओके, क्योंकि ये R3C1 है, मतलब R3C1 ये 0 है, तो क्या आएगा S13 इंटू S11 S13 इंटू S12। ओके, देखो यहाँ पे यू कैन सी हियर S13 इंटू S11 माइनस S13 इंटू S12 इज इक्वल टू 0। अब फ्रॉम इक्वेशन 1.9.1 एंड 1.9.2 हम क्या करेंगे, S11 इज इक्वल S22 रहता है। ओके, अगर हमने 1 को पावर दिया तो 1 को जितना आउटपुट आएगा, तो उतना ही अगर हम 2 को पावर दिया तो 2 को आउटपुट आएगा, तो मतलब S11 और S22 ये सेम रहते हैं। ठीक है, या हम उस इक्वेशन से भी उसको निकाल सकते हैं, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन से भी हम उसको निकाल सकते हैं। देखो ये इक्वेशन में, ये देखो यहाँ पे अगर हमने दो इक्वेशन कंपेयर किए तो देखो ये S13 है, ये S13 है, ये S12 और ये S12 है, मतलब ये दो कोएफिशिएंट भी सेम है और ये भी सेम है, ये 1 भी सेम है, रहा कौन सा ये, अगर ये सब सेम है मतलब S11 इज इक्वल टू क्या है, S22 है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, S11 इज इक्वल टू S22। ठीक है, S11 इज इक्वल टू S22 लिखा हमने। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1.9.3, मतलब ये इक्वेशन से ये सेम है, S13 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो S13 स्क्वायर मतलब 2 S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब क्या, ये 2 इधर जाएगा डिवाइडेशन में, सो ये यहाँ पे रहेंगे 1/2, तो 1/2 मतलब वो स्क्वायर है, S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, मतलब S13 इज इक्वल टू 1/√2, S13 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1.9.4 ये इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, S11 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे S13 कॉमन निकालेंगे बाहर, विल टेक S13 कॉमन और उसको यहाँ पे भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ S11 माइनस S13 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है S11 इज इक्वल टू S13 और S11 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे S11 इज इक्वल टू S12 आएगा, S11 इज इक्वल टू S12 और S12 मतलब S22 फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, सो ये सेम आ गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1.9.1 S11 स्क्वायर प्लस S11 स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। अभी इक्वेशन 1.9.1 में क्या किया, ये पुट किया, ये जो 1.9.1 है ये यहाँ पे क्या किया, ये वैल्यू पुट किया हुआ, यहाँ पे S11 S12, ये S13 कितना है 1/√2। ओके, और S12 S11 सेम है, इसलिए S12 को क्या लिखा, S11 लिखा, तो S11 स्क्वायर प्लस S11 स्क्वायर प्लस S13 क्या है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो ये आएगा S11 स्क्वायर प्लस S11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 इधर गया तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, सो S11 स्क्वायर प्लस S11 स्क्वायर मतलब क्या, ट्वाइस S11 स्क्वायर, और ये इधर का 2 इधर जाएगा तो ये यहाँ पे होगा 1/4, सो S11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 मतलब S11 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे S11 कितना है 1/2। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ पे मैट्रिक्स में पुट करेंगे, तो S11 आएगा 1/2, S12 भी S 1/2,
1 3 भी क्या 1/√2, ये देखो वैसे 1 3 1/√2, फिर S21 1/2, S22 1/2, S23 -1/2 1/√2, फिर S31 1/√2, फिर S23 -1/√2 और ये 0. So this is our matrix, scattering matrix for E plane T. So this is the scattering matrix for E plane T. Okay. So any doubt in this matrix? No. So next we have hybrid T. So this is the scattering matrix for E plane T. In the same way, we can derive the matrix for hybrid T also, or H plane T also. Sorry, hybrid. It's not a hybrid. It's a H plane T. So H plane T में ये उसके डायग्राम है H plane T में. इस H plane T और E plane T में फर्क सिर्फ इतना है कि E यहाँ पे पोर्ट 1 और पोर्ट 2 है और ये H पोर्ट है. तो अगर हमने H पोर्ट में एनर्जी इंसर्ट की तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 से जो एनर्जी मिलेंगी वो सेम मैग्नीट्यूड रहेगा उसका और पोलरिटी भी सेम रहेगी. ओके, जैसे ई प्लेन में पोलरिटी यहाँ पे चेंज होती थी और यहाँ पे पोलरिटी चेंज नहीं होगी तो पोलरिटी क्या होगी उसमें सेम रहेंगी. ओके, सो तो पोलरिटी सेम रहेंगी इसलिए यहाँ पे S इज इक्वल टू S11 S12 S13. ठीक है, तो यहाँ पे पोलरिटी चेंज नहीं होने वाली. मतलब यहाँ पे S13 इज इक्वल टू S23 रहेगा. मतलब क्या, आपने S अगर 1 को इनपुट दिया तो 3 का आउटपुट मिलेगा. ठीक है, और 2 को अगर इनपुट दिया तो 3 को जो आउटपुट मिलेंगे वो सेम रहेगा. तो मतलब S13 इज इक्वल टू S23, S13 इज इक्वल टू S23. और ई प्लेन में कैसा था, S13 इज इक्वल टू माइनस S23 था. तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं हैगा, बस इतना ही चेंज है. तो अगर हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज किया तो यहाँ पे देखो S12 इज इक्वल टू S21, S23 इज इक्वल टू S32 इज इक्वल टू S13, S13 इज इक्वल टू S31. ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, फिर अभी हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे. देखो सेम कैलकुलेशंस करेंगे जो हमने प्रीवियसली किए हैं ई प्लेन में. यहाँ पे S33 आएगा, ये सिमेट्रिक स्कैटरिंग मैट्रिक्स है. बस सेम इक्वेशन यूज करेंगे हम, यूनिटरी प्रॉपर्टी का इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम R1C1 करेंगे, R2C2, R3C3 और R3C1 करेंगे. सेम हमें ये इक्वेशन मिलेगा S11 इज इक्वल टू S22. ओके, S11 इज इक्वल टू S22 मिलेगा. फिर R3C1 में हमें S13 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा. तो ट्वाइस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब ये 2 इधर जाएगा डिनोमिनेटर में. तो S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, मतलब S13 इज इक्वल टू 1/√2. फिर R1C1 करेंगे हम, S11 स्क्वायर प्लस S12 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, सो R2C2 इज इक्वल टू S12 स्क्वायर प्लस S22 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 आएगा. तो दो इक्वेशन को अगर कंपेयर किया हमने तो देखो ये 1 2 1 2 है, यहाँ पे 1 3 1 3 है. इसका मतलब क्या, S11 और S12 ये सेम हो गए. तो इसका S11 स्क्वायर इज इक्वल टू S22 स्क्वायर. मतलब दो इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, S11 स्क्वायर इज इक्वल टू S22 स्क्वायर. इसका मतलब क्या, S11 इज इक्वल टू S22, S11 इज इक्वल टू S22. फिर R3C1 में क्या आएगा, S13 इंटू S11 प्लस S13 इंटू S12 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से S13 कॉमन निकल के इधर भेज देंगे, वो 0 हो जाएगा. देखो S13 कॉमन निकला, इधर भेज दे 0 हो गए. तो क्या रहेगा, S11 प्लस S12 इज इक्वल टू 0, मतलब कि S11 इज इक्वल टू माइनस S12. तो S11 इज इक्वल टू माइनस S12 और S12 इज इक्वल टू माइनस S11, ऐसा भी लिख सकते हैं. सो पुट अब वैल्यूज इन इक्वेशन. तो ये इक्वेशन में अगर पुट किया हमने तो यहाँ पे हम S12 की जगह पे S11 पुट करेंगे प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. ये 1/2 इधर भेज देंगे, ये 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 हो जाएगा. ये S11 स्क्वायर प्लस S11 स्क्वायर ट्वाइस S11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, मतलब S11 इज इक्वल टू 1/4 आएगा. S11 स्क्वायर इज 1/4 मतलब S11 इज इक्वल टू 1/2. S12 भी माइनस 1/2. तो ये सब वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट किए तो हमें ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स का इक्वेशन मिलेगा.
Okay, so this is the scattering matrix equation for H plane T. Okay, so this is the E plane T and H plane T. Okay,